Hello students, welcome to our YouTube channel of Velke National School, Vasai East. This is your English teacher, Miss Jyoti Singh. Student, today we are going to learn a new topic, a new chapter from your English textbook, chapter 4.2, the story of Gautama's quest. Now, who is Gautama? Gautama कौन है? We all know Gautam Buddha, right? So today in this story we are going to learn about today we are going to know about Gautam Buddha's life and Gautama's quest. Quest means what? A search. उनकी कोई खोज थी जो उन्होंने की है और उन्हीं के बारे में ये पूरी स्टोरी है. So today what we are going to learn? Today we are going to learn about the life of Gautam. So let's see what it is. Gautama the Buddha was born over 2500 years ago as Prince Siddharth. So student, now do notice, हाँ ध्यान से सुनो. गौतम बुद्धा का ओरिजिनल नेम क्या था? प्रिंस सिद्धार्थ. So afterwards he changed his name and he became Gautam Buddha, that is the sant and all. But earlier his name was Prince Siddharth. He was the son of the king Raja शुद्धोधना. सो वो क्या थे? वो एक प्रिंस थे और वो एक राजा के बेटे थे. एंड who was that king? The king's name was शुद्धोधना. He was born on the sacred day of Vaishak Purnima at Lumbini, situated near the city of Kapilavastu. So where he was born at Lumbini, and at when जो सेक्रेड डे, पवित्र दिन कहते हैं. सेक्रेड मीन्स पवित्र डे. और कब? वैशाख पूर्णिमा. सो ही वॉज बोर्न ऑन दैट डे एंड इन द सिटी ऑफ Kapilavastu. 7 days after his birth, his mother Maya Devi passed away. So Gautam Buddha's mother, that is Maya Devi, she passed away. कब? After giving birth to Prince Siddharth, that is Gautam Buddha, उनको जन्म देने के 7 days बाद she passed away. It was prophesied at his birth that the infant would grow to be either a great Chakravarti, an emperor, or a sannyasi, a renunciate, who would bring comfort to thousands of lost souls. So we all know that whenever we are born, जब भी हम पैदा होते हैं, so हमारे जो parents होते हैं, what they do? They make a kundli and all. Even some priest come to our house. कुछ पंडित हमारे घर आते हैं and then they do the भविष्यवाणी and all, few fortune teller we say. So उन्होंने क्या कहा था कि this baby, this Prince Siddharth, this small little boy will be in future have the two quality. Either he will be a great Chakravarti, like he will be a great emperor, बहुत बड़ा बादशाह and प्रजा के लिए सब करने वाला एम्पर योद्धा बनेगा, या तो ये एक सन्यासी बनेगा जो कि बहुत से हज़ारों लोग जो जिनके सोल्स जो है वो यहाँ वहाँ घूम गए हैं, मीन्स जिसको सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है, उनको ये क्या करेंगे? ही विल प्रोवाइड अ गाइडेंस टू दैट सोल्स. So this Prince Siddharth will be either two of them. Either he will be an emperor, that is an yodha, Chakravarti, or he will be a sannyasi. So this was the fortune teller. This was the fortune prediction of the person, of the baby. And who is that baby? Prince Siddharth. And who is Prince Siddharth? Gautam Buddha. The king was determined to prevent his beloved son from renouncing the world. So अब किंग को बहुत ही ख़राब लग रहा था कि अगर मेरा बेटा सन्यासी बन गया तो मेरे ये सारे जो साम्राज्य है उसका क्या होगा. सो ही वॉज वेरी टेंस, ही वॉज डिटरमाइंड क्या कि मैं अपने बच्चे को, अपने बेबी को, अपने सन को इन ये सन्यासी बनने से मैं रोकूंगा. आई विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम दिस. He surrounded the prince with every imaginable luxury and comfort. And so what he did, उन्होंने शुरू से ही प्रिंस सिद्धार्थ के लाइफ में बहुत सारा कंफर्ट एंड लग्जरी जो है वो प्रोवाइड कर दिया. सो दैट वंस ही विल बी यूज्ड ऑफ ऑल दैट लग्जरी एंड कंफर्ट, ही वोंट लीव द पैलेस. And then
my son will not become the renunciate, the sannyasi. It is said that the king had 3 magnificent palaces, one for each season of the year, and in the beautiful atmosphere of these royal mansions, Prince Siddharth lived his scheduled protected life. वो सुना जा रहा था कि राजा के पास किंग शुद्धोधना के पास 3 बड़े बड़े भव्य महल, यू कैन से पैलेस थे, जो कि हर एक सीजन के लिए एक थे. एंड प्रिंस सिद्धार्थ वॉज एंजॉइंग दैट लाइफ. इन एवरी सीजन ही यूज्ड टू चेंज दी पैलेस. फर्स्ट सीजन के लिए अलग पैलेस, सेकेंड सीजन के लिए अलग, थर्ड सीजन के लिए अलग. इन दिस वे ही वॉज in this way he was living his life, that is secular. In good time, the prince was married to one of the most beautiful girls of the realm, Princess Yashodhara, the daughter of the Kolyan king. So जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, and then at a proper age in a good time he married to a princess. वो भी एक यू कैन से क्या थी वो प्रिंसेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजकुमारी. यस. सो राजकुमारी जो है यशोधरा, उनसे उनका मैरिज, ही गॉट मैरिड टू प्रिंसेस यशोधरा. एंड प्रिंस यशोधरा वॉज द डॉटर ऑफ द कोलियन किंग. वो भी एक अच्छे हाई प्रोफाइल किंग की डॉटर थी. सून अ सन राहुल वॉज बोर्न टू देम. एट द एज ऑफ 29, Siddharth went out to see his kingdom and to meet his subjects. So यहाँ पे subjects means not this our subject, हाँ, history, geography, civics. Here the subject means प्रजा, जो लोग हैं. So at the age of 29 जब उनकी शादी हो गई, and then after a marriage he got a son, Rahul named. So after that he went out from the palace to meet his praja, to meet his subjects. He beheld what the Buddhist book called the 4 signs witness to the impermanence of the world. He saw an old man. So उन्होंने सोचा कि अगर मैं इतनी बड़ी प्रजा को देखूंगा तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट बुद्धिस्ट बुक, एक यू कैन से आध्यात्मिक और यू कैन से रिलीजियस बुक, यस, रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने जो लाइफ के 4 इम्पॉर्टेंट बेस होते हैं, पिलर्स होते हैं, उन्हीं टाइप के लोगों से मिलने की उन्होंने सोची. एंड अकॉर्डिंग टू द बुक, दैट बुद्धिस्ट बुक, द लाइफ डिपेंड्स ऑन द 4 साइन. एंड व्हाट इज दैट? ही सॉ एन ओल्ड मैन, अ डिजीज मैन, अ डेड मैन एंड अ मॉन्क. सो उनके अकॉर्डिंग लाइफ के जो 4 पिलर जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो है एक ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरा हुआ आदमी, एंड अ मॉन्क. सो दिस आर द 4 pillars of a life according to the Buddhist book. And there entered into his heart a vision of dukh, the world sorrow. What is the way out of the world sorrow? He asked himself repeatedly. So after observing these 4 kinds of signs, he was asking to himself कि ये जो दुख है, ये जो sorrow है, इसे लोग कैसे बाहर निकले. The unanswerable question led him to renounce worldly life, leave his wife and son, and set out in quest of the truth of life. अब ये जो क्वेश्चन था कि हाउ दिस सॉरो विल बी एलिवेटेड, ख़त्म कैसे होगा, तो ये आंसर ढूंढने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए व्हाट ही डिड, उन्होंने अपने वाइफ, अपने बच्चे और सबको छोड़ के, अपने महल, राजा, सबको छोड़ के ही वेंट. And where he went to find to set out what the quest means search, ढूंढना. क्या ढूंढना? ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सच क्या है. So in this way finally at the age of 29 he left the house. The king was so protected, राजा इतने प्रोटेक्टेड थे कि उन्होंने 29 ईयर्स तक क्या किया, प्रिंस सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को उन्होंने पैलेस के अंदर ही रखा था, सारे कंफर्ट एंड लग्जरी के साथ, सो दैट उनका जो बेटा है वो कभी सन्यासी ना बने. बट आफ्टर एट द एज ऑफ 29 फाइनली ही गॉट अ क्वेश्चन इन हिज माइंड, दैट इज व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड what are these 4 signs
and how this dukh, the sorrow, will be alleviated. So to find the answer of this question, he went into the world and he left his wife as well as son. The story of Gautama's quest that ends in illumination and attainment of nirvana is one of the most moving tales of our times. For 6 years did Gautama practice intense asceticism. For several days in succession he ate barely a grain of rice. His strong athletic body was reduced to a bag of bones, but it served no purpose. The Buddha then scattered a handful of grass on the ground beneath the Bodhi tree and formed a seat for himself. I care not if my skin and nerves and bones decay, he thought. I care not if my lifeblood dries. I shall not give up until I attain to enlightenment. So what he did, the story of Gautama's quest that ends in illumination and attainment of nirvana. तो गौतम बुद्ध ने क्या किया, वो 6 years तक इसी खोज में घूमते रहे, जंगल एंड देन फाइनली व्हेन ही गॉट टायर्ड ही सेट अंडर दी बोधि ट्री. द ट्री यू कैन सी हियर द ट्री. तो वो ट्री के नीचे बैठ के कुछ दिन तो उनका थोड़ा अच्छा चला, कुछ दिन उन्होंने वो ग्रेन्स जो है राइस खा के उन्होंने निकाले, बट उनके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि जब तक मुझे लाइफ का ट्रुथ जो है वो नहीं पता चल जाता, जब तक उसकी रोशनी जो है प्रकाश, ज़िंदगी के प्रकाश का सच मुझे नहीं पता चल जाता, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा. एंड देन व्हेन ही गॉट टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड व्हाट ही डिड, उन्होंने उस पेड़ के नीचे पत्ते वगैरह ग्रास जो है सब घास वास जो है वो बिछा के उन्होंने वहीं पे व्हाट ही डिड एस्केटिज्म मीन्स जब हम व्हाट वी डू मौन व्रत रखते हैं और हम ध्यान करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज एस्केटिज्म. एंड उनके दिमाग में एक ही था कि भले से मेरे बॉडी का पूरा बोन्स जो है वो सड़ जाए, स्किन ख़राब हो जाए, मेरे बॉडी के ब्लड पूरे सूख जाए, बट जब तक मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं हटूँगा. एंड आई विल फाइंड द आंसर ऑफ माई टू माई क्वेश्चन. What divine willpower in these words, and what may not a man achieve if he would wake up his willpowers. So this is a proverb students. इसका मीन्स क्या है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है. हाँ होती है, बट ऐसा नहीं है कि हम वो अचीव नहीं कर सकते हैं. अगर हमारे अंदर वो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय कर लिए कि बस मुझे ये करना है मेरे लाइफ में, आई वॉन्ट टू अचीव दिस गोल, सो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग दैट गोल. It is said that he saw a vision which contained a message for him. It is acted as a spiritual stimulant to him. So ये कहा जाता है कि जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्हें एक विजन जो है वो दिखाई दिया, मीन्स एक वर्ड जो है वो उन्होंने अपने अंतरात्मा में देखी, और वो विजन उनके लाइफ में एक टॉनिक, स्टिमुलेंट्स मीन्स टॉनिक, एक टॉनिक का काम किया. बिकॉज हिज बॉडी वॉज गेटिंग डिकेड, उनकी हड्डियां जो है वो गल रही थी, स्किन खराब हो रहे थे, बॉडी पूरा जहाँ से वो एथलेटिक बॉडी थी वो एकदम बैग ऑफ बोन्स मीन्स हड्डियों का ढांचा हो गया था. एंड देन फाइनली उनको एक विजन दिखाई दिया, और वो विजन उनके लिए एक स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट, एक टॉनिक का काम किया. एंड व्हाट वाज दैट वर्ड विच सर्व्ड एज अ टॉनिक टू हिम? Tune the sitar neither low nor high, the string overstretched breaks and the music dies. The string over lack is dumb and the music die. He thought to himself, I too have tortured my body to starvation. I have taken to extreme. Let me follow the middle path. So here this small stanza says कि सितार जो होती है उसकी जो धुन होती है वो ऊंची भी होती है और हाई भी होता है और लो भी होता है, लेकिन कब तक? जब तक वो सितार है. एक बार उसकी जो स्ट्रिंग है वो खींच जाए, वो बड़ी हो जाए, तो जो म्यूज़िक होता है वो क्या होता है? बंद हो जाता है. और अगर वो म्यूज़िक बंद हो जाएगा तो क्या है? मर जाएगा. लोग सुनना भूल जाएंगे, समझना भूल जाएंगे.
सो ही सेड कि मैंने अपने बॉडी के साथ बहुत कुछ कर लिया, मैंने अच्छी एथलेटिक बॉडी से लेके स्टारवेशन, भूखमरी तक मैंने हर चीज़ ट्राई किया। नाउ आई विल चूज़ द मिडल पाथ, मैं कुछ और रास्ता ढूंढता हूँ। When he tried to get up to take a bath in the river, he found that he had become so weak that he could not rise. So to find the middle part, he went to the bank of the river. वो एक नदी के किनारे गया ताकि वो थोड़ी सी बात ले सके, because for so many days he didn't took the bath. उन्होंने नहाया नहीं था, वो अपने ध्यान में मग्न थे, बिजी थे। So then he went, and when he went to the bank of the river, he observed that his body is very weak. उनकी जो बॉडी है वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। Just then a beautiful girl named Sujata appeared before him. और वैसे ही अचानक से वहाँ पे एक गर्ल जो है वो सामने दिखाई दी, और उसका नाम क्या था? सुजाता। Carrying a golden bowl filled with sweetened milk and rice. और उसके हाथ में क्या था? एक कटोरा था जिसमें राइस था और मिल्क था, स्वीटेंड मिल्क एंड राइस, जो हम कहते हैं ना दही, दूध चावल। सो दूध चावल उस कटोरे में था, उस बाउल में था। When she saw the weakened ascetic, she offered the bowl at his feet. तो जैसे देखा कि ये जो पर्सन है, ये साधु है, ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उन्होंने वो बॉल प्रिंस सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को ऑफर की। प्लीज एक्सेप्ट माई ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड राइस। बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग। दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्टारवेशन। इट रिफ्रेश्ड हिम एंड इन्फ्यूज्ड अ न्यू स्ट्रेंथ इन हिम। He realized that making the body suffer was not the way to enlightenment and truth. So, when the girl Sujata offered the sweetened milk and rice, he readily accepted. उसने खुशी खुशी, प्रिंस सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध ने वो खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। और बहुत दिनों के बाद, इतनी भूखमरी होने के बाद, इतने दिन भूखा उपवास रहने के बाद, फाइनली ही गॉट अ गुड मील। और जब उन्होंने वो मिल्क राइस जो है वो खाया, देन ही ऑब्जर्व्ड एंड देन ही केम टू नो दैट ज़िंदगी में भूखे रहने से सच का पता नहीं चलता है। हमारे बॉडी को तकलीफ़ देके हमें कुछ हासिल नहीं होता है। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सच ढूंढना है। यू हैव टू अचीव द गोल, यू विल, बट भूखा रह के, उपवास रह के कि हाँ इफ़ आई विल स्टार्व सो मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स टू अचीव द गोल्स। Gautama had longed for enlightenment. That night he found the answer to his query. What is the cause of sorrow? The cause of sorrow is desire. The cure for sorrow is to give up all desires and adopt right living. And then फिर उसी दिन रात में सोते सोते उन्हें उनके क्वेश्चन का आंसर मिला कि जीवन का दुख क्या है? डिज़ायर। एंड व्हाट इज़ डिज़ायर? किसी चीज़ की लाइक बोलते हैं ना कि मुझे लंबोर्गिनी कार चाहिए, ये मेरा डिज़ायर है। आई नो दैट आई कैन नॉट अफोर्ड थिंग्स बट देन टू ऑल्सो आई नीड इट, मुझे चाहिए एनी हाउ। सो दिस डिज़ायर, जो अनएक्सपेक्टेड वांट्स होते हैं, दैट मेक्स द लाइफ सॉरोफुल। सो पर्सन को उतना ही मिलना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना उनको ज़रूरत है, नीड है। ओके, सो एंड एट द एंड व्हाट ही एक्सेप्टेड दैट, और सबसे बड़ा सल्यूशन क्या है कि अगर हम ये अनवांटेड चीज़ को अपने लाइफ से हटा दें। Born under a tree, the Buddha received illumination also under a tree. To this day, we venerate this tree as the Bodhi tree. एंड फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने लाइफ को वहीं पे, अपने जो फैमिली लाइफ थी उनको उन्होंने त्याग दिया और वो उसी बोधि ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने अपने लाइफ को एक नया वे दिया। उन्होंने वहाँ पे बैठ के वो लोगों को हील करते थे, जो लोग परेशान रहते थे उनको गाइडेंस देना, उनको मेडिटेशन देना। इस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ को वर्थफुल बनाया और जो लोग अपने लाइफ से परेशान रहते थे वो उनके पास आके उनसे सजेशंस लेते थे, मेडिटेशन लेते थे। एंड इन दिस वे एवरीवन वाज ट्राइंग टू बी
happy. So this was the life of Gautam Buddha. तो हमारे लिए हमें जो गौतम बुद्ध मिले हैं वो कैसे, he was also like a normal person. He was born in Kapilavastu city in the house of King Shuddhodana, and then he married to a girl named Yashodhara, and then after getting married at the age of 29 years he had a son. His name is Rahul, and then he left the entire palace, his luxury and comfort, and he went to a forest to find the truth of life, and even also to find the cause of sorrow. So I think students, you have understood this topic, this story. आपको समझ में आई है ये स्टोरी? एक दो बार और पढ़ो, read twicely, so that you can clear the story's concept, how the story goes, and what is the moral value of this. Person's desire should be according to their wants and needs, not more than the demand. Okay, उतना ज़्यादा desire हमें नहीं करना चाहिए. So in this way the story ends over here. Till then students, have a good day, stay safe, take care, bye bye.